Hello and welcome to the ICC Champions Trophy special coverage right here on 10 Sports. This is the DP World dressing room and I am Fakhri Alam. And it is day 2 in the Champions Trophy. We've got a big game coming up today and this is the match we will be witnessing. It is India versus Bangladesh coming up. Right in your screens, live from Dubai, United Arab Emirates. बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा आज. But before we get cracking on that, let me bring into the show my 4 very, very special guests. I've got some incredible people here in the studio with me. First up, I've got the young and still playing and representing his country and making his country proud. I've got Mr. Chiteshwar Pujara. Chiteshwar Pujara, welcome and thank you for being here. You are a substitute, but हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. 103 test matches and 19 centuries and look how satisfied you look. Good to have you here. Thank you. Next up, we've got the toe crushing and golf swinging and just an incredible all-rounder with 9 fingers and a lot of happiness. Mr. Waqar Younis. Good afternoon, Waqar. I've got 9, but they still do the job. Yeah. That's the most important. I know. bit. I want to know because वो golf में यूं होता है ना वो you have to interlock. ये वाला, इधर वाला नहीं है. उल्टा वो अगर ऐप आए दिन on the fair problem. Good to have you. Just keeping you guys on the toe. Also joining us, one-day specialist from India, played for his country, and is a top-notch broadcaster around the world. We've got and a proper fashion icon, Mr. Nikhil Chopra. Nikhil, good afternoon. Thank you so much for that lovely introduction. ये last line की I love the fashion hurt sense. pause. Oh, You know, thanks so because the next gentleman that I'm introducing, he's also, you know, his dressing sense is just absolutely incredible. Thanks to him, role model मेरा अच्छा है. The next gentleman that you're going to introduce. So I appreciate that. But welcome. Thank you very much for being here. It's great to have you in the studio. And of course, finally, ladies and gentlemen, cricket royalty amongst us, the man of many, many talents. आप जानते हैं, कलाकार भी हैं, गुलकार भी हैं, रैपर भी हैं, बैंकर भी हैं, बेहतरीन किस्म की बॉलिंग भी करते थे और दुनिया में तहलका मचा के रखते थे और मूवी स्टार भी हैं, फिल्मों में भी काम किया हुआ है दोस्तों. None other than my own very good friend, Mr. Wasim Akram. Good afternoon, Wasim. Good afternoon जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल सबको. बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजरे सबका और बड़ा ज़बरदस्त मैच आने वाला है. ये बिल्कुल बेहतरीन मैच आने वाला है, मगर जो बेहतरीन मैच आने वाला है उससे पहले जरा कल के बारे में बात कर लेते हैं. तो और बात करनी है जी बिल्कुल. हर मैच में वो थोड़ा याद तो कराना होता है ना, भूलना जाना क्यों है किसी का. Basically. So yesterday it was Pakistan in the opening game of the ICC Champions Trophy. Pakistan, the defending champions now. Some bad news coming out of the Pakistan camp, and that is that Fakhar Zaman will not be playing the rest of the Champions Trophy. He is out and he's replaced by Imam ul Haq in this squad. Wasim, your thoughts? That's unfortunate. Injury कोई control नहीं कर सकता. Obviously, it was a massive drawback for Pakistan yesterday because वो open करने नहीं आए जब 300 plus chase करने गए थे और फिर हमने कल रात को length में discuss भी किया कि आपको पता है कि फ़खर को इंजरी हुई है या इंजरी से वापस आ रहा है तो रनिंग नहीं उससे होनी. वो कॉमन सेंस थी ना एक. आपने उसको नंबर 4 पे भिजवा दिए. अब ये चीज़ें बाद में क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, बट एक नज़र आता है ना, एक प्लानिंग होती है. आपको चाहिए था कि आप वहाँ सलमान आगा को भेजते या किसी और बैठता, तैयब ताहिर था उसको बैठते, उसको 6 पे थोड़ी रखा हुआ है. इसको आखिरी 10-12 ओवरों में भेजते कि जा भाई चौके छिक्के मार, 12 की एवरेज है, 13 की एवरेज है, ताकि तुम्हें रनिंग ना करनी पड़े. बट दैट डिडंट हैपन. बैड लक फॉर फखर. व्हाट अ गुड प्लेयर एंड इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान के ही वोंट बी अवेलेबल. इमाम अगेन दस्तखत दे रहा था. ही वाज नॉकिंग एट द डोर. ही एवरेजेस 15 वन-डे क्रिकेट. उसको तो रखना चाहिए था पहले भी, बट देर आए दुरुस्त आए. आई विश हिम ऑल द लक. और अगर वो खेलता भी है तो उसका पहला मैच प्रेशर वाला होगा, ठीक ठाक किस्म. बहुत ज़्यादा 23 तारीख को, संडे को, द मदर ऑफ ऑल गेम्स. एब्सोल्युटली. पुजारा, डबल ब्लो फॉर पाकिस्तान. पहले साइम अयूब हमें मुयस्सर नहीं थे, अब फ़खर ज़मान भी जो है वहाँ पे नहीं रहे. हाउ बैडली डज दैट डेंट दी बैटिंग ऑर्डर फॉर पाकिस्तान? बहुत ही बड़ा ब्लो होगा क्योंकि देखिए हम पावर प्ले की बात कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट में पावर प्ले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ पर अगर वो अगर ओपन नहीं कर रहे तो जो पावर प्ले का जो एडवांटेज मिलता है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो स्कोर अलग होता है, वो जब नहीं करते हैं तभी अलग हो जाता है.
तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो पहले के 10 ओवर है वहाँ पर बहुत बड़ा वो हो सकता है। और जहाँ पर अगला मैच इंडियन टीम के साथ है कि जिनकी पेस अटैक अच्छी है, शुरू के जो 10 ओवर है वो अच्छे तेज़ गेंदबाज डालने वाले, अगर वहाँ पर अच्छी शुरुआत नहीं होती है तो वो एक बहुत ही बड़ा। आपकी स्पिन भी बहुत अच्छी है भैया, कुलदीप है, वरुण है, फिर 2 लेफ्ट आर्मर्स हैं। बड़े 5 स्पिन ऑप्शंस हैं सर। नहीं, बड़े मैच में ये उन दोनों को खिलाएंगे मेरे ख्याल। एक को तो कुलदीप या वरुण तो खेलेगा ही खेलेगा वरुण पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच में। वरुण खेलना, बिकॉज 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर दोनों जो है वो बहुत काबिल बैट्समैन भी है, वो अपने दम पे मैचेस जिता भी सकते हैं। आई थिंक वरुण अ लिटिल मोर मिस्ट्री स्पिनर, उनको इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो सीरीज खिलाई भी थी। सो आई थिंक दे विल गो विद वरुण फर्स्ट एंड देन यू आल्सो हैव 2 ऑलराउंडर्स। सो Bakar, what would be the conversation today in the Pakistani camp? आई थिंक कॉन्वर्सेशन तो रात को ही होगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से खेले हैं दैट्स नॉट द वे टू गो। 320 आजकल की नॉर्म क्रिकेट में आई थिंक इट्स गेटेबल। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट गेटेबल, बट यू हैव टू मेक अ प्लान टू गेट दैट। आई थिंक देयर वाज नो प्लान, there was no strategy, and I think the talk of the dressing room, talk of the town or whatever you call it is कि हम intent दिखाएं। और I know India is a very strong side going to the next game, next match, और do or die game है, जीतना ही है, और वरना तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और ऊपर से आप चैंपियंस हैं, तो I think that will be very embarrassing. So I think aggressive cricket खेलना होगी। I know इमाम आ गया, फखर नहीं है, but they can play. It's not that they can't play. It's just a matter of taking risk. अगर risk नहीं है तो reward नहीं मिलेगा। Just go all guns blazing at the most। हारोगे ही ना, हार रहे हो, हार तो रहे। जरा खुले दिल से खेलो, दिलेरी से खेलो, शॉटे मारो, यू नो, बिल्कुल वो जैसे कल बैटिंग हुई है वैसे ना करो। भाई अगर पाकिस्तान टीम की वो इतिहास देखते हैं, खेलने का तरीका तो वही होता था ना, कि वो जुनून से खेलने का, जिस तरीके से आज मे भी अफगानिस्तान खेल रही है, नेवर से डाई वाला वो एटीट्यूड। कल ऐसा लगा कि वो शेल शॉक हो गए, आखिरी 10 में जब बॉलिंग कर रहे थे, जब पहले 10 में बैटिंग करने आए, पीछे फंस गए। इट डिडंट सीम कि वो जुनून नजर आ रहा है बैटिंग में, कि यार घर में खेल रहे हैं, यू नो दैट पैशन जो इंटेंट की बात कर रहे हैं, दैट लैक्ड। और having said that, Pujara, there were moments of glimpses of that passion जब हमने खुशदिल को देखा या सलमान आगा को देखा, that intent was there. तो पैचेस में अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, अगर आप वनडे क्रिकेट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप पूरे 50 ओवर है, वहाँ पर पूरे 50 ओवर में अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है। आप काफ़ी बार पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी हुई, बट उसके बाद जब 3 विकेट न्यूजीलैंड के गिर गए थे, वहाँ पर दबाव बनाना ज़रूरी था, वहाँ पर दबाव नहीं बना पाए, तो फिर न्यूजीलैंड ने वापस कम बैक किया। उसके बाद बल्लेबाजी में शुरुआत अच्छी नहीं हुई, बट मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी फिर भी ठीक हुई थी। तो वो जो पॉजिटिव साइंस थे, बट पूरा जो कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए वो नहीं था, और दबाव थोड़ा पाकिस्तान टीम के ऊपर ज़्यादा है। जो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं कि टीम के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है, बड़ी टूर्नामेंट है उसका, तो वो कैसे हटाए? मेरे ख्याल से वो चीज़ डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत है टीम को, कि टीम मैनेजमेंट या तो टीम के कप्तान, उनको कहीं ना कहीं फियरलेस जो क्रिकेट होता है वो दिखाना होगा। Well, a lot of lefties in that feature that we just saw, and a lot of passion, Wasim. Yeah, of course, it's Champions Trophy, जैसे गौतम ने कहा, it's a big deal, it's not an easy team। कोई भी टीम बड़ी आसानी से नहीं आपने लेनी, और एक मैच खराब हो गया, आप टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हो। So yeah, they're going to take them seriously. Obviously, going into this game, you don't have to be a rocket scientist to know कि Indians are favorites, big time favorites। अगर past record भी देखा जाए, उनकी इंडिया की present form देखी जाए, और बात करेंगे बांग्लादेश की क्रिकेट पे भी, अभी ब्रेक का टाइम है मे बी इसके बाद। Absolutely. And with that, it's time to take a break right here on the DP World Dressing Room. But when we come back, there's more to talk about both these teams, their head-to-head counts, and clearly India having domination in this particular matchup as well. We'll see you on the other side of the board. Hello and welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Anam and you're watching 10 Sports, our special coverage of the ICC Champions Trophy 2025. And with me in the dressing room, I've got 4 fantastic gentlemen. I've got Nikhil Chopra, Waqar Yunus, the great Wasim Akram, and Mr. Jiteshwar Pujara. And we're talking about the India versus Bangladesh game that is coming up. But before we get on with that, let's take a look at way back when India won the Champions Trophy in 2013. Interesting, Nikhil. You know, Rohit saying that everything changed for me after that 2013 Champions Trophy. What exactly does he mean by that?
Well, from the cricketing point of view, of course, wearing that white jacket under his leadership, it makes a big difference. When you go out there, win any sort of ICC trophy, as a skipper, it makes a big difference. So, बड़ा फर्क पड़ता है और young team थी. आज जो उस टीम से आज भी कुछ लड़के हैं जो 12 साल के बाद उस टीम का हिस्सा है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आप एज अ प्लेयर रन तो बना रहे हैं, लेकिन एज अ लीडर यू गेट योर हैंड्स ऑन द सिल्वरवेयर. यू नो, एकदम से पूरे ड्रेसिंग रूम की इज्जत जो है ना वो आपके बतौर कप्तान और बढ़ जाती है. आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. दिस इज इंटरेस्टिंग दैट यू से कि 12 साल बाद भी 3 लड़के हैं. That's a big deal. I mean, 12 साल लड़के हैं अभी भी वो. अभी भी जडेजा की तरह बात. फिटनेस देखिए ना. I know that's लेकिन यो टेस्ट के तो exactly what I wanted to point out. कि they are still boys. किसी का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता. जडेजा दुनिया का बेस्ट फील्डर है. 12 साल पहले भी बेस्ट फील्डर था. ट्रू. सो ऐसे लड़कों से पाकिस्तानी यंगस्टर्स को, किसी भी यंगस्टर्स को, किसी मुल्क के सीखना चाहिए कि ये ऐसे कैसे कर लिया इन्होंने. Look at that batting lineup, Pujara, and take us through it. I mean, that's just outstanding. और देखिए यहाँ पर रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो बहुत ही बढ़िया है. बट एक पॉइंट यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि यशस्वी यहाँ पर मिसिंग है, जो इंडिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन ऑल फॉर्मेट्स. तो इंडिया की जो मिसिंग है, that's the question. की जगह नहीं बन रही. हाँ, और मेरे ख्याल से वो स्क्वाड में होने चाहिए. स्क्वाड में क्यों नहीं है पता नहीं, बट इट्स अ टफ कॉल क्योंकि उतने अच्छे बल्लेबाज बाहर बैठे हुए हैं और बाकी के जो खेल रहे हैं वो तो बढ़िया प्लेयर्स है ही. मुझे एज एन आउटसाइडर पुजी लगता है कि वो टीम में, स्क्वाड में इसलिए नहीं है कि आपका बैकअप इतना जबरदस्त है. नॉट जस्ट इंडियन टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट आप ए टीम ले लें, अंडर 19 ले लें, प्लेयर के पीछे प्लेयर एक नहीं 2-2 3-3 बैठे हुए हैं. So that's a plus, that's a positive thing. इट्स अ बिग पॉजिटिव. और जो प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं. तो आपके जो बाहर बैठे हैं प्लेयर वो भी परफॉर्म करके बाहर बैठे हैं और जो खेल रहे हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस काफ़ी है. और एक ये अच्छी बात है कि ये अच्छा हेड है क्योंकि आपके पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस है. It's a good problem. It's a good problem to have, but पुजारा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग आपने कहा कि स्कोर करके भी बाहर बैठे हुए हैं, तो जो अंदर हैं इस वक्त टीम के अंदर उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ जाता कि भाई वो हम पीछे भी स्कोर करके बैठे हुए हैं, तो अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया, they have to be on their toes. Everybody is on their toes, right? They have to be. और उसके साथ में देखिए एक कंफर्ट लेवल भी है उनके पास क्योंकि जो खेल रहे हैं वो भी परफॉर्म करके खेल रहे हैं. तो किसी का फॉर्म खराब नहीं है, वो अच्छी बात है. और जब आप बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, खास करके चैंपियंस ट्रॉफी, आपकी स्क्वाड के जो प्लेयर्स है खास करके प्लेइंग 11 वाले, तो वो अगर परफॉर्म करके पिछली सीरीज से आ रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर रहता है. Shubman Gill averaging 60 Waqar. I know, just to finish it on that for a second, कि आपके जो बाहर बैठे हुए ना रिजर्व में, उनमें आपके स्पिनर हैं, 3 स्पिनर हैं और 1 विकेट कीपर बैठ रहे हैं. I mean, you could have easily left 1 spinner and had Jaiswal in there, isn't it? Yeah. कर तो सकते थे, बट वो स्पिनिंग ऑप्शंस आपको खास करके दुबई में जब खेल रहे, क्योंकि यहाँ पर शायद रविंद्र ऐसा सुना हुआ है कि ये मैच में प्लेइंग 11 में ना हो. मतलब जो अभी मीडिया से खबर आ रही है और जिस तरह से कल टीम की प्रैक्टिस हुई वहाँ पर गौती भाई ने उससे कुछ बात करी और उसके बाद स्पेकुलेशन ऐसी आ रही है कि रविंद्र शायद बाहर बैठेंगे और उनकी जगह पे हर्षित खेल सकते हैं टीम में. तो स्पिनर में रविंद्र जो ऑलराउंडर है और वरुण शायद वो भी मिस आउट करेंगे और कुलदीप को खिलाएंगे. तो वो दोनों प्लेयर्स ऐसे है कि जिसको आपको स्क्वाड में खास करके जब दुबई में खेल रहे तो उनको अगर आपको स्पिनर ज्यादा है तो सानू दे दो 1-2. प्रॉब्लम प्लेंटी. मिलजुल के करना चाहिए सब कुछ. लेकिन वो जो आपने 60 की एवरेज की बात की, शुभमन गिल तभी यशस्वी की शायद जगह नहीं बन रही बिकॉज the board is looking at maybe bigger responsibilities in the future for Shubman Gill. तभी उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक यंगस्टर को वाइस कैप्टन बना के आगे लेके चल रहा है. फील्डिंग का भी इशू हो सकता है कि वन इज अ बेटर फील्डर एंड नहीं, यशस्वी तो बाजी वैसे ही अपने आप में बहुत यंग है एंड इज अ गुड फील्डर. इज गॉट ग्रेट पेयर ऑफ हैंड्स. समटाइम होता है ना, आप एक एज होता है, फील्डिंग अच्छी हो तो आपको एक एथलेटिक थोड़ा वो बैटिंग में बिल्कुल ही जगह नहीं बन रही. ओके, या प्रॉब्लम. अब जरा कोहली पे आ जाते हैं. आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड दैट कोहली इज होल्डिंग ऑन टू मैन. कोहली, आप अगर कोहली के बारे में आपने बात करनी है तो स्टार स्पोर्ट्स देख लें. आउच. नहीं, उनको ये भी बताना है कि यार बाकी प्लेयर भी हैं बट वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम ग्रेट जिसे कहेंगे. उनका रिकॉर्ड देख लें, 73 50 50 100
50 और एवरेज देखें ऑलमोस्ट 60 की ridiculous. एवरेज, स्ट्राइक रेट देखें और 73 50s भी हैं। सो कोहली की जितनी तारीफ की जाए, देखें ना, मोस्ट सेंचुरीज देख लें, टॉप ऑफ द लेडर हैं, Yeah. सचिन तेंदुलकर हैं, रोहित शर्मा है, 3 इंडियन और एक वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ कोर्स रिकी पॉन्टिंग, एंड देन जिसने हमें बहुत मारा है, इसने हमें मारा कम और घसीटा ज्यादा था, जयसूर्या ने। जयसूर्या की एवरेज तो 32 की है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। देखो हमें ही पड़ता था ना यार। आप लोगों से खास मोहब्बत थी। The 2 Ws, he had a ये special. कुछ ऐसे करके ये बैटिंग कर रहा है, ये हल्का सा शॉट ऐसे करता था, हम इधर देख चिक्का उधर इंदा। मैं उन्हें क्या 2 दफा अंग्रेजी में, पंजाबी में बताता हूँ कि यार जो गल क्या कर वो करया कर, इधर दिखा के इधर ना मारिया कर। Don't dodge us on that. मिसाल सही दी नहीं है वैसे आपने। अगर आप दे दें सही वाली मिसाल मैं क्या है? वो दे नहीं सकते। अच्छा वो वाली, अच्छा वो वाली मिसाल, वो क्या है बॉय? ये टीवी पे नहीं बता अच्छा, सकते, चलें। हर गल तू पूछनी है। बाद में जरूर बता दीजिए प्लीज, आई वांट टू नो। ठीक है ना? बट an important thing on Virat Kohli is we're looking at those stats and everything, and आपने कहा 50 centuries that you can see out there. But the most important thing is that his knocks are there, those big scores to make India win. Nah, but I also would like to know and tell people कि his averaging batting second chase में कितनी है? 90 की है, 90 प्लस की, I'm just guessing, but I think that's तभी तो निकनेम दे दिया था इंडिया में भी उनका, चेस मास्टर। chase. It's a He big- loves a challenge, and you see the best of Virat Kohli, and especially when you're looking to chase down a big total, उनका बेस्ट खेल देख के आता है। पूजी आप तो इतना खेले हैं उनके साथ टेस्ट क्रिकेट में भी, कैसा है उनका एटीट्यूड जब वो बैटिंग करने आते हैं? देखिए, वन इज ही ऑलवेज लाइक्स टू टेक द बॉलर्स ऑन। जब भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो उनको थोड़ा अग्रेसिव खेलना पसंद है, ज़्यादा टाइम लेके नहीं खेलते। और सबसे बड़ा पॉजिटिव उनका जो है वो स्ट्राइक रोटेट करना वनडे क्रिकेट में, क्योंकि आप जब भी उनकी बल्लेबाजी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80 की स्ट्राइक रेट से उनकी शुरुआत होती है और फिर उसके बाद एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर अपने शॉट्स खेलने लगते हैं। बट उनको रोकना, क्योंकि हर एक जब भी वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो स्ट्राइक रोटेट जो खास करके मिडिल ओवर्स में जो करनी होती है और उसके साथ एक बाउंड्री बॉल तो उनको मिल ही जाती है, बट वो स्ट्राइक रोटेशन है वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में। क्योंकि अगर आप स्पिनर या तो अच्छे गेंदबाज के सामने स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं वनडे फॉर्मेट में, तो एक जो प्रेशर है वो नहीं बनता है बैट्समैन के ऊपर। और जिस तरह से वो डोमिनेट करते हैं, जितने शॉट्स हैं उनके पास और उनका फिटनेस लेवल, आई थिंक हमने कल भी बात करी, ही इज 36 years old बट स्टिल वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर्स इन द इंडियन टीम। तो तारीफ करनी होगी क्योंकि इन द वर्ल्ड डेफिनेटली। रन बनाने और मेंटल शिफ्ट की आपको बताता हूँ, जब विराट कोहली एज ए कैप्टन अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आया था, देन ही वेंट टू श्रीलंका, भारतीय टीम में मेंस टीम में खेला, देन कुछ मैचेस में रन बने, फिर एक सीरीज के बाद उनको शायद रन ना बनाने के बाद ही वाज ड्रॉप्ड। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और मुझे ये चीज़ इसलिए पता बिकॉज मैं उस टाइम पे दिल्ली का रणजी ट्रॉफी का सेलेक्टर था। वापस आए, कहता भैया जहाँ भी खेलूंगा, कहीं भी खेलूंगा ना, सिर्फ रन बनाने की सोचनी है, एंड आई वांट टू टर्न थिंग्स अराउंड। सो एट अ वेरी यंग एज, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में वो मेंटल शिफ्ट हुआ कि अब जहाँ भी खेलूंगा ना, मेरा काम है मेरा बल्ला बोलना चाहिए। So that, I guess, awareness is also very important. And he was back playing Ranji Trophy just this season. अभी इससे बात खेला है, बट क्या Yeah, and I've got to tell you, from what I've seen, some of those bowlers that were bowling to him were just fantastic. वो जम्मू कश्मीर के थे आपके वो फास्ट बॉलर जो थे, एक जो फास्ट बॉलर कश्मीर की टीम के थे, कश्मीर वो अच्छी टीम थी, क्वार्टर फाइनल हारे हैं मेरे ख्याल में, आप बता रहे थे मुझे। नहीं, जो विराट मैच खेले थे वो लीग, वो दिल्ली का लीग का रेलवेज के साथ, हाँ रेलवेज के साथ उनका मैच के था। साथ था, ओके right. Yeah, but you know, it's just that hunger for more runs at all times, always remaining. 40,000 बंदा भी वो देखने आया था उसको उस वाले मैच में उस भी? मैच में। दिल्ली। तो फिर स्टार सही दिखाता है उन्होंने, हाँ स्टार सही दिखाता है बार-बार। नहीं, स्टार ठीक दिखाता है, I'm just telling You know, when you just said, उनको ये भी I have to बताना tell you this, when you just said that line, I immediately just glimpsed on my phone and हेमंत, our director, जो एक्चुअली कराची की गेम्स डायरेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, कराची में स्टूडियो में वहां पर मौजूद है, उन्होंने सीधा सीधा मैसेज भेजा है, टेल वसीम दिस इज द बेस्ट लाइन ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी, that if you want to know about, they talk about Virat Kohli, tune it. No, because of course उसको दिखाना is the best player in the world, Yeah. but चेवी कैंटन नहीं दिखाना। बाकी भी 11 प्लेयर भी हैं, वो फील करते होंगे यार, आज I feel वो खुद फील करता That's the होगा। सास पुजारा He would know, but विराट खुद फील करता हो यार, किसी और को भी दिखा दो। भाई किसी मैच में उन्होंने रन नहीं बनाया तो बाकी भी प्लेयर हैं जो मैच जिताते हैं। हमारा कोच जो है ना, वो हमेशा बोलता था, वो भी उसी नेटवर्क पे बैठते थे और बोलते थे
भाई एक बंदा नहीं जिताता, बाकी प्लेयर ने भी जिताया, उन्होंने भी रन बनाया, तो उसकी भी बात करो. Actually, if I'm not mistaken, I've seen one of the YouTube clips where some analysts were there, and don't want to say the names, but वो कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि विराट got out and the match was still won. I think it was Iyer or somebody who played, you know, really well and all that. उन्होंने कहा वो क्या, but you know, just कि विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में मौजूद होते हैं ना, तो उसकी वजह से जो बाकी प्लेयर्स हैं ना, उनके ऊपर इतना वो ये वाला क्रेडिट बेचारा उसकी नहीं, पानी फेर दिया. हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है, वो मैंने बांधी है पहली. कोई नहीं बोला इसके बारे में पिछले 10 सालों से. उसे पता नौकरी नहीं मिलनी. Well, credit to you, Sultan. After all, you know, cricket It's all fun, yeah. It's all fun. It's all fun, and yeah. I hope that everybody enjoys that. And with that, it's time to take another break right here on the DP World dressing room. We'll come back right after these messages. Welcome to DP World Dressing Room, and these are the India fixtures that are lined up for this ICC Champions Trophy. They will clash with Bangladesh today, and then on Sunday, the big game, the biggest game of cricket. That's Pakistan versus India. Pakistan under immense pressure. And then it is New Zealand clashing with India, all 3 games in Dubai, and we're going to talk about that. But since all these 3 games are in Dubai, it's time to take a look. And live images on your screen as Team India arrives at the Ring of Fire, the Dubai International Cricket Stadium, and all set for their big clash with Bangladesh. How is the bus ride from the hotel to the venue? What goes on in there, especially in the Indian bus? Pujara, आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? Rock and roll. सब ने अपने में लगाए होते हैं हेडफोन. अब हाँ भाई, हाँ, गाली नहीं होती. नहीं तो आपके जमाने में तो नहीं होते थे हेडफोन. नहीं, हेडफोन नहीं तो आप लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता था. हम हमारे सब कौड़े बाबे बने होते थे. सारे सुबह सुबह, right? Depends on the result of the match. ना ना General coming arrival. अभी तो मैच का पता ही नहीं लगा. सुबह वैसे ही थके होते थे. नहीं, डिपेंड के रात सुबह वैसे ही थके होते थे. वो wait a minute. Before I get on to any other conversation, I have to ask you this, Waqar. What do you mean कि सुबह हम वैसे ही थके होते थे? अभी की अर्ली मॉर्निंग रात कब पिछले दिन मैच खेला होता था. जी. Let's move on. Let's move on. हम लोग थे तो जब सिंगापुर में वो गाना निकला था रिटर्न ऑफ द मैक का, Return of the Mac, yes. तो हम लोग कुछ शरारती कान में ना लगा के वी टू टेल द बस ड्राइवर ये गाना बजाना, सो दैट एवरीबॉडी लिसन्स टू इट, एंड देन जो भी बस में सबसे जवान होता था, द यंगेस्ट गाय, कि आज आप बताओ मैच में जा रहे हैं कौन सा गाना सुनना है. Oh, nice. So just to get that whole The whole vibe going on basically. नहीं, बट हर टीम में बैक बेंचेस होते हैं, तो बस में भी एक ग्रुप रहता है कि जो हेडफोन लगा के नहीं बैठते, 5-7 बंदे होते हैं जो पीछे बस में बैठते हैं. यंगस्टर्स, ज्यादातर यंगस्टर्स होते हैं जो बैठ के बातें करते रहते हैं. क्या बातें करते हैं आप लोग बस के पीछे? वो तो क्लास के पीछे यहाँ पर नहीं बता सकता, मैं बता नहीं सकता टीवी पे. ड्रेसिंग रूम टीवी पे नहीं बता सकता, बट टीवी नहीं है, ड्रेसिंग रूम है, बता दे. ड्रेसिंग रूम है वो नहीं. और मुझे छोड़ेंगे नहीं वो लोग फिर. कोई नहीं छोड़ेगा आपको. All right, let's get down. We were looking at the Dubai stadium now, guys. The 3 of you were here for the ILT T20, DP World ILT T20. Yeah. So you know the conditions in Dubai. The ball has been gripping, turning. Nikhil was with us as well. Yes, Nikhil, please. जिस तरीके से टूर्नामेंट चला है, एंड स्पेशली लास्ट वीक जब फाइनल खत्म हुआ, विकेट थोड़ा सा ड्राई हो गया, लुक्ड अ लिटिल टायर्ड, सो थोड़ा सा बॉल ग्रिप होगा. वी वर ऑल टॉक हियरिंग आल्सो, ड्यू की बात हो रही थी. फाइनल मुकाबले में ड्यू नहीं था. That was about good couple of weeks ago. करेक्ट. बाजी आई थिंक 9 को खत्म हुआ. Yeah. 9, सो अब 11 दिन पहले ड्यू इतनी नहीं थी, बट ऑफ कोर्स इट मेक्स अ डिफरेंस. जो भी टीम टॉस जीतती है, दे प्रेफर चेजिंग, क्योंकि वो हवा में हल्की सी भी नमी होती है तो the conditions get slightly better to go out there and bat, but spinners will come into effect. Make no mistake about it. और जो अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो पहले वो आपके 10 ओवर दोनों तरफ से जो नया बॉल यूज होता है, बॉल स्विंग आपको होता हुआ नजर आएगा. इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट इज डिफरेंट. ऑफ कोर्स T20 क्रिकेट इज डिफरेंट और वनडे क्रिकेट लॉन्गर वर्जन है, तो और इतनी जल्दी नहीं होती बैटर्स को. तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिच है ना यहाँ की, ये इवन यू बैट फर्स्ट पुट रन्स ऑन द बोर्ड. कल देख लिया ना आपने, रन्स ऑन द बोर्ड आर ऑलवेज क्रूशल इन 50 ओवर क्रिकेट. T20 शॉर्टर फॉर्मेट है, आपको रन शायद पता हो तो बेहतर होता है. तो आई थिंक इसमें पहले बैटिंग करना भी कोई उसमें मुजायका नहीं है.
क्योंकि ये टूर्नामेंट शुरू जब हुआ था तब गेंद हिल रहा था। बहुत सीम हुआ क्योंकि घास छोड़ा था। एक दो जो सेंटर वाली पिच है, एक तो ग्राउंड स्टाफ ने पहले ही कहा था कि इस एदे में नहीं कराना मैच, क्योंकि दिस इज फॉर पाकिस्तान इंडिया मैच। सो पाकिस्तान इंडिया वाली जो पिच है दरमियान वाली, उसमें कोई क्रिकेट हुई नहीं है। सो दैट विल बी अ फ्रेश पिच। आई एम नॉट श्योर कि ये मैच उस पिच पे होगा या साथ वाली पिच पे होगा, बट आई थिंक द पिचेस आर गोना बी डेफिनेटली जो निकलने का स्लो होएंगी, स्पिनर्स गोना प्ले बिग रोल। मेरे ख्याल से शायद फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी, क्योंकि दोनों टीम की जो कॉम्बिनेशन अभी लाइकली प्लेइंग 11 दिख रही है, उसमें 3 फास्ट बॉलर के साथ जाने वाले हैं शायद दोनों टीम। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्पिनर को हेल्प बिल्कुल रहेगी, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जो हेल्प है वो फास्ट बॉलर को भी रहेगी। और अगर बांग्लादेश टीम की बात करें तो वो तेज़ गेंदबाजों के सामने इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते, स्पिनर के सामने उनकी बल्लेबाजी काफ़ी बेहतर रहती है। Yeah, but also बांग्लादेश के पास भी 3 बड़े अच्छे फास्ट बॉलर अब जो हैं, they have available. Yeah, the fast bowling has definitely improved. एक उनका यंग लड़का आया है जो 140 bowling करता है। और secondly, I have a question. Let's look at their ये squad आ squad गई है, first. this is the squad in front of you. एक्सपीरियंस है, सौम्य सरकार बड़े अरसे से खेल रहा है। आई लाइक दिस यंगस्टर तौहीद रदोई, इज अ राइट हैंडर, वेरी डैशर, इज अ डैशर, इज अ गुड बैटर। शांतो कैप्टन देयर, यू नो, अप एट द टॉप, ऊपर से एज एन ओपनर। फिर विकेट कीपर्स आ जाएंगे, एक्सपीरियंस है, मुशफिकुर रहीम है, जाकर अली है, और फिर परवेज हुसैन। और ऑलराउंडर्स में महमूद अल्लाह जो कि बड़े अरसे से बांग्लादेश से खेल रहे हैं। मुझे तो ये भी भूल गया किदूं तक खेल रहे हैं। He's been playing for a long time. 39 years old. Mehdi Hassan Mirza, who has really done well in Pakistan just recently. So, Yeah. I mean, इतना easy इनको नहीं लिया जा सकता। Bowling में भी टस्कन अहमद हैं, राना हैं। Tanzeem is the young boy, I think, Yeah, who's yeah, Rana is the नहीं boy. राना। No, but even Tanzeem Hassan जो है ना, he's a good bowler. He's very consistent line and length bowler. So balance है इनकी टीम में। Can they handle the pressure playing against India? That's a big question. Look, I have a question for people of Bangladesh. I love the country, love the people, been there so many times, played club cricket there for Abani. Okay, how come in last 20 years, एक दो नाम आपको आते हैं कि ये प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे कंसिस्टेंट हैं? शाकिब था, उससे पहले जो कप्तान था मुशफिकुर, तमीम था। अब देखिए मुशफिकुर रहीम जैसे कीपर हैं, ही इज बीन प्लेइंग फॉर 20 इयर्स। एंड महमूदुल्लाह की आपने बात की, इज 39 इयर्स ऑफ एज। और वहाँ क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है बांग्लादेश में। आई रिमेंबर गोइंग देयर इन 94। तो जब मैं जाता था आउटस्कर्ट्स में या कहीं निकले बाद ड्राइविंग पे, तो लड़के सारे सड़कों पे, फील्ड्स पे फुटबॉल खेल रहे होते थे। उसके बाद मैं 5-8 साल बाद गया, वो सारे क्रिकेट खेल रहे थे। इस क्रिकेट इज मैसिव इन बांग्लादेश। हाउ कम क्रिकेटर्स रेगुलर नहीं आ रहे? दिस इज आई वांट टू नो। वसीम भाई, फियर है, सेलेक्टर्स में भी फियर है टू सेलेक्ट यंग प्लेयर्स। वो भी कहीं ना कहीं डरते हैं। जो बड़ा टूर्नामेंट आता है कि जी अच्छा बड़े नाम ले जाओ, तो एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। व्हाइट बॉल क्रिकेट में यू नीड फ्रेश लेग्स, यू नीड people who got energy. So you mean वही वाला fear जो पाकिस्तान में Yeah, similar, है? very It's similar. a similar kind of thing. Yeah. Why do you think? Why would that be happening, Nikhil? Is it that they're not confident on their first class structure and the process? I was just going to come to that. आप जब भी नई टीम करते हैं, हर टीम दुनिया में ना एक ट्रांजिशन फेज के थ्रू चलती है, एंड यू ओनली लुक फॉर बैकअप कि आपका फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, हाउ द प्लेयर्स कमिंग थ्रू द रैंक्स, आपके कितने डेवलपमेंट टूर्स हो रहे हैं। जैसे इंडिया ए का टूर होता है, बांग्लादेश ए टीम कितना टूर कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सब कॉन्टिनेंट में हो, स्पिनर्स नहीं है। देन इफ़ यू लुक एट इट, जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट की पाजी ने बात की, जितने आपके ओवरसीज़ के प्लेयर्स हैं ना, लगभग हर टीम में उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर या क्लब क्रिकेट में दो जाके प्रोफेशनल्स जाके खेलते हैं, और वो आज से खेल रहे हैं। वो भाई 20 साल से वो अरसा चल रहा है। Yeah. तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स जस्ट हाउ यू आर लुकिंग टू डेवलप योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बिकॉज दैट्स योर नर्सरी। इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दैट नर्सरी, you will never get good enough end products coming through the ranks. और एक और चीज़ है कि जब तक आप हम बात करते हैं ना कि जी ट्रांजैक्शन पीरियड जो होता है, जो टीमें जब नीचे जाती हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया पे क्यों नहीं आता ये चीज़? न्यूजीलैंड देख लो, उन पे क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि दे जस्ट कीप इंडल्जिंग
देयर यंगस्टर्स, आप हमेशा देखेंगे कि एक नया अचानक एक बंदा आएगा, नाम अभी वो आएगा, यंगस्टर ओपनर को लेके आए हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेला है बॉर्डर गवास्कर। एग्जैक्टली तो वो ये कहते हैं कि वो दे जस्ट कीप इंडल्जिंग दोस यंगस्टर्स एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कि सिर्फ बेंच पे बिठा के वापस ले और फिर बाहर कर दो, दे मेक श्योर दे प्ले देम एंड दे गिव देम प्रॉपर बिकॉज उन सब में कम्युनिकेशन है। जो रिटायर भी होता है वो अपना प्लान, अगर यहाँ सैक होता है फॉर इंस्टेंस, कोच कोई होता है वो छोड़ के जाता है एक पेपर या जो भी उसका होता है, अगला पढ़ दे, अगला जो कोच आ रहा है वो उसके नोट्स पढ़ेगा या उसकी कम्युनिकेशन आगे जाएगी। यहाँ हमारे यहाँ कुछ चेंज हुआ थे, वो बात भी नहीं करते एक दूसरे से। और दूसरा मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट, जितना मैं बांग्लादेश में खेला हूँ और उनके क्रिकेटर्स को जितना मिला हूँ, सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है कि काइंड ऑफ पिचेस दे प्ले ऑन, क्योंकि बांग्लादेश में जो पिच है वहाँ पर उनकी टीम और उनके प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट जब वो बाहर जाते हैं तो बहुत कम सीरीज जीतते हैं। तो आप अगर लो बाउंस वाली पिचेस पे, टर्निंग ट्रैक जहाँ पर उनके बल्लेबाज को स्पिनर के सामने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनके स्पिनर्स वहाँ पर गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं, बट उसके बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। तो डोमेस्टिक जैसे पुजारा कह रहे हैं, हरी विकेटें बनाओ, अच्छी विकेटें बनाओ, आपकी बैटिंग भी बेहतर होगी, आपकी बॉलिंग भी बेहतर होगी, आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, बट दैट्स नॉट अगेन फेयर। Fear. It's sad, but well, the fear of job security, you know, that I should hang on to my position and I don't lose it if the team loses too badly, and so forth and so on. Anyway, I'm just getting news that the Bangladesh team has also arrived at the Dubai International Stadium. Those are those arrival shots. You can take a look at those. And with that, we are going to take a break here at the DP World dressing room. We'll see you on the other side. Welcome back to the dressing room, brought to you by DP World. Our continued coverage of the ICC Men's Champions Trophy 2025. With me in the dressing room, I've got four fantastic people. I've got Nikhil Chopra, Waqar Younis, the great Wasim Akram, and Cheteshwar Pujara. And we're talking about the India-Bangladesh clash coming up from Dubai live in a moment. But Waqar, quickly, how badly is Bangladesh going to be missing Shakib Al Hasan? I mean, he still have another 20 years of भी cricket. इंसान ही है ना भाई, ने रिटायर भी तो होना ना कभी, अपनी उसकी जगह कोई उसका ढूंढ लो भाई, कोई प्लान भी। मेरे सवाल के ऊपर आपने ना ऐसा पानी नहीं सलाह भी फेर दिया, सुनामी मार दी। नहीं, अच्छी बात, सिंपल आंसर तो उसने यही था ना। तो पूछा मैंने इनसे था ना, आप कहाँ से बीच में कूद पड़े हैं यार? चलो यार, तू जवाब दे दे। हाँ जी, फिर वही वसीम भाई सही कह रहे हैं वैसे, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, कि आप यू नो किसी रिटायर तो होना है ना किसी ने, ना खत्म तो करनी है क्रिकेट। आई मीन, ग्रेट सर्वर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट ओवर द इयर्स, साकिब अल हसन, एंड ऑफ कोर्स ही इज गोना बी मिस्ड, क्योंकि अगर आप पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में अगर जाएंगे ना, जब ये हुई थी लॉन्ग टाइम बैक, एंड इवन इन द वर्ल्ड कप ऑल्सो, ही वाज देयर मेन मैन, ही वाज द मैन who was opening at times and playing at number 5. He was utility cricketer. I mean, bowling पूरी 10 ओवर उससे मिलते थे. So I think he is going to be definitely missed big time. Interesting name, exactly. Exactly, Wasim. I was saying, I'm wondering what the history is, how the family named him Mehdi Hasan, because great ghazal singer Mehdi Hasan. क्या कर रहे थे Mehdi Hasan? वो जरा आपने अभी दिखाया था दोबारा, क्लोजअप पे आइएगा वसीम के, देख लें आप लोग Mehdi Hasan का जब मैंने नाम लिया, Mehdi Hasan. ये तो गुलाम अली, इतने बड़े नाम है मेहदी हसन के, वो जितने शहनशाह गजल उन्हें कहा जाता था, तो वो नाम ही इतना मुकद्दस है कि जब नाम आया तो मेरे ज़हन में एकदम वो आ गया। बुरा नहीं गाते आप वैसे, अच्छा शुरू से है ना, मेरे से अच्छा गधा रेंगता है। That's all right. Okay, I don't know what to say to that. Yeah, I'm right. I'm not very good at singing. No, you are. यार आपका गाना रीमिक्स हुआ था लास्ट टाइम, याद है आपको? वो थोड़ी आवाज मैं भारी कर लेता हूँ, कभी कम कर लेता हूँ, बस ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। आपने कभी पुजारा सुना है वसीम को? And he is very good with rap songs, हाँ? अभी ब्रेक में सुनाऊंगा। हाँ, नहीं, वो ऑलराउंडर है, वो तो मुझे पता है, बट गाने का पता नहीं। हर किस्म का राउंड ऑल किया हुआ है भाई ने। So it's going to be Sultan. Yeah? The swinging Sultan. That's the swinging side of him. Yeah. Always. Nikhil, Bangladesh now. I was listening to Mehdi Hasan. You sounded very confident. Huh? It's not. और हमने कल भी ये बात थोड़ी सी की थी कि I don't think it's going to be just a one-sided affair here today. नहीं, देखिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, वन साइडेड अफेयर तो होगा नहीं। और एक चाहे जितनी बड़ी टीम के आप सामने जा रहे हो बतौर प्लेयर, मेहदी हसन या पूरा बांग्लादेश का ड्रेसिंग रूम वुड गो इनटू दैट गेम बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड, सिटिंग द बस प्रिपरेशन जोन विद दैट बिलीफ कि यार हम
टुडे कुड बी आवर डे, हम ये मैच जीत सकते हैं. बट टू मी आई थिंक एज स्ट्रेटजी फॉर बांग्लादेश, जिस तरीके से वो टीम नजर भी आ रही है, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर टॉस जीत के बांग्लादेश शुड लुक टू बैट फर्स्ट. Okay. बिकॉज जो हम 3 फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, एंड देन द सपोर्ट स्टाफ, कैप्टन, कोच सर भी यही बोले यार रन अ बॉल खेलने की कोशिश करो, ट्राई एंड गेट अबाउट 250 and then let's see where we are. Let's not try and get ahead of I have a yourself. question to Pooji. Coach important होता है, of course. उसको समझना कितना जरूरी है, उसकी भाषा, लैंग्वेज. देखिए कोच एक तो उनका जो कम्युनिकेशन है टीम के साथ, वो कितना उसके लिए समझ तो आनी चाहिए ना, वो क्या कह रहे हैं. I know where you're going. प्लेयर की समझ कैसे आएगी बांग्लादेश प्लेयर को? मैंने समझ नहीं आती होती. एक बात कर रहा हूँ, ये दोस्त की है आपके दोस्त मेरा की। डिग्री दोस्त है वो, लवली गाय. बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो आपने ये भी फिर एक ट्रांसलेटर रखना पड़ता है, वो जो एक्सप्लेन करता है कोच की बात, इसको फिर इधर से उधर, वो कुछ कहता है, ट्रांसलेटर कुछ कहता है, उन्हें कुछ और समझ आती है. So it's a bit of a khichdi. It is. Whisper, Chinese whisper. I've told you this story before. I'm not taking the name of the player because 90s के क्रिकेटर जो है ना, ये नाम क्यों नहीं लेते मुझे ये बिकॉज वो आके फिर अपने ब्लॉग में शुरू हो जाते हैं कि उन्होंने ये बात की, वो मेरे से बदला लिया, उन्होंने ये कहा दिया, उन्होंने ये कर दिया. सो लेट्स डोंट टेक नेम्स. पहले माफी मांग लो ना मैं भी माफी मांग लो. माफ कर देना. कि मेरे अब्बे ने हो माफी मांगना. इन्होंने जेफरी बाइकआउट को लेके आए, ये आई थिंक विकी कप्तान था. दोबारा सुना तो फिर है ना, कहते ना दोबारा सुना देती है. मैं कॉमेडियन नहीं है, मैं स्टोरी जो लोग आए वो हमने पाकिस्तान आई वाज प्लेइंग, ये वकार कप्तान था कि मोइन कैप्टन था. ओके. तो चेयरमैन पीसीबी को एक जेन में आया, सडनली आमद हुई जेफरी बाइकआउट को बुलाना है. बुला लिया. मैकडॉनल्ड्स को किसी ब्रांड को कहा स्पॉन्सर कर दो, कर दिया. ठीक ठाक पैसे दिए तब, 30-35 हज़ार पाउंड वाज अ लॉट ऑफ मनी इन 2002-1. या आई रिमेंबर. सो वो आया तो मैं ट्रेनिंग करने गया कदाफी स्टेडियम. तो आई डिड 5 लैप्स ऑफ द स्टेडियम. 5 लैप को कम से कम भी नहीं, आपको 20-22 मिनट तो लगते होंगे आराम से. अब वहां इन्होंने एक टेंट लगाया हुआ था जिसमें से इतने ना सर नजर आ रहे होते थे. टेंट यहाँ तक था. अच्छा. तो मैं रनिंग कर रहा हूँ, एक क्रिकेटर बैट्समैन हमारा बड़ा अच्छा ओपनर था, हार्ड हिटर था वो, और जेफरी बाइकआउट बातें कर रहे हैं. मैं 5 चक्कर लगा रहा हूँ, वो सिर्फ ये कर रहा है, ये करी जा रहा. 5 चक्कर मैंने लगा भी लिए, स्ट्रेचिंग भी कर ली, वो फिर कर रहे हैं. उनका मीटिंग खत्म हुई, मैं बुलाया उसको, मैं कहा हाँ भाई की कह रहे, ऐसे कहते पाइन कुछ समझ नहीं आई. तो मैं क्या ऐसे वो कर रहा था, कह रहे मैं ऐसे करता तो वो घंटा और बोलता. तो ये जरूरी है कोच का समझा, लड़कों को समझ आना चाहिए वो क्या कह रहे हैं. वसीम, अगर आप बांग्लादेश टीम के कोच होते तो आप क्या एडवाइस देते बांग्लादेश? एक एडवाइस मैं उनको जरूर करता, आते ही अगर नया, सबसे पहले कि सेलिब्रेट जरा इंसाना की तरह कर लो. सेलिब्रेशन में भी एक स्टाइल होता है. करेक्ट. आई कैन अंडरस्टैंड कभी कभी आप ओवर रिएक्ट कर देते हो, आई एम फाइन. ये तो ऐसे ही करते हैं कि जैसे इन्होंने कोई किला फतह कर लिया, मतलब आवाज देनी पड़ती है वापस आ जाओ. So celebrate with bit of grace. Okay, I think show I your can enthusiasm, show your happiness, but with grace. ऐसा की मतलब है जो वो दोबारा सॉरी इस तरह से ऐसा मतलब है मैं नाग yes वसीम जरा क्लोज कीजिएगा वसीम. नहीं कर देना यार, कर देना यार. I'm not doing. I've done it. यार YouTube पे देख लेंगे. प्लीज कर देना यार. नहीं एक दफा और. नहीं I'm not मैं doing ना it. आगा एक दफा मैंने प्लीज कर दो. Seriously तेरे गर्दन क्या सिर पाड़ दिया. Not doing it. All right, folks, you're watching the DP World Dressing Room. We're going to be back right after these messages. Stay with us. Welcome back to the DP World Dressing Room. You're watching our special coverage of the ICC Champions Trophy 2025, and today is another game, Bangladesh versus India. First game for India and Bangladesh in this Champions Trophy. It's going to be an interesting contest here in Dubai. But before we get cracking on that, let's just take a look at the head-to-head count between Bangladesh and India. Both the teams have played a lot of ODI crickets. 41 matches, 32 matches, इसमें 32 matches India ने जीते हैं, 8 matches Bangladesh ने जीते हैं. But interestingly, last 5 matches में 2 matches India ने और 3 बांग्लादेश ने जीते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों एक दफा खेली हैं and that was won by India. So this is interesting. Obviously, And heavily in favor of India and of course Bangladesh. I'm all for stats. Yes, but as a player मैं पुजारा प्रेजेंट प्लेयर है ना, इनसे पूछते हैं पुजी अब ये टीवी चैनल्स या हमारा शो भी जैसे हमने दिखाया कि पिछले 5 मैचों में इंडिया
2 जीता है, बांग्लादेश 3। अगर आज आपका मैच है, आपको क्या आपको फर्क पड़ता है? आपको ये क्या हुआ? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थैंक यू देखिए वेरी मच। क्योंकि जब आप देखिए ये स्टैट्स देखते हैं, जब मैच टीम हारी है बांग्लादेश के साथ, तो कौन सी कंडीशन में खेले थे वो मैटर करता है। टीम में कौन से प्लेयर थे, कौन से नहीं थे, सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ तभी क्या थी, अभी क्या है। सीरीज थी कि बड़ा टूर्नामेंट था। हाँ, एग्जैक्टली। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है, और प्लेयर ये स्टैट्स देख के कभी प्रिपेयर नहीं करते, और साइकोलॉजिकल मेरे ख्याल से कहीं डिसएडवांटेज भी नहीं होता है, क्योंकि आज के प्रेजेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंट, आज के दिन में आपकी टीम क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सामने वाली टीम की कॉन्फिडेंस कितनी अच्छी है, और उनके पास ऑप्शंस क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। All right, Team India, they're warming up at the Ring of Fire, the Dubai International Cricket Stadium, and the captain Rohit Sharma, they're looking good, looking confident. And this is going to be really fun. Now, Team India has been in Dubai for the last 6 days, or maybe a week, and have been practicing regularly. Bangladesh has also been here. There's the king himself, Mr. Virat Kohli, getting ready. Love those tattoos and that slow motion shot there. Just absolutely. This young man here to make a mark. Very. क्या बॉलिंग कर रहे हैं, नए गेंद से, पुराने गेंद से, दोनों स्विंग। एंड लाइक 2 साल पहले जब इसको देखा था हमने, 2-2.5 साल पहले जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, he had a bad game against पाकिस्तान। तब से ऐसा इम्प्रूव किया इसने कि अब वाइट बॉल में तो he is one of the top bowlers in world cricket। और उसकी अगर पेस की भी बात करें तो वो बहुत तेज नहीं है, बट उसके पास जो कंट्रोल, जो स्विंग और जो वेरिएशंस है, क्योंकि दिमाग से गेंदबाजी करता है, सिर्फ पेस के ऊपर फोकस नहीं करता है, तो he has improved a lot. He has definitely, and in the absence of the great man himself, Mr. Bumrah, he will play a very important role. वेरी। मैं पाजी से पूछना चाहता हूँ, जो आपने वो मैच की बात की जो T20 वर्ल्ड कप वाला था, he had a bad day, उसके बाद से ट्रांसफॉर्मेशन एक डायमेंशनल का होता था, उसका सिर्फ राइट हैंडर को वो बॉल अंदर आता था, बट नाउ यू लुक एट इट, ही गॉट दैट बॉल टू स्विंग अवे। आप दोनों से पूछना चाहूंगा, इतना लेट इन बॉलर्स करियर, हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी टू डेवलप दैट another part of your skill, because आप बचपन से एक ही तरफ से बॉल स्विंग कराते हैं। आप T20 में साथ थे हमारे, एज अ कमेंटेटर वकार भी था। आपने देखा कि आमिर ने इतने अरसे बाद अब आके वो स्पेल सीखा, आउट स्विंग राइट हैंड को पूरा सीम के साथ। एक तो था ना क्रॉस पकड़ लो तो चला जाता है ऐसे सीधा एंगल के साथ, आमिर ने अब आके सीखा है पिछले साल 1.5 में। वो हवा में बॉल, हवा में शाहीन ने भी कोशिश कर रहा है, उसका टेस्ट मैच में होता है हल्का हल्का बाहर। सो या किसी भी एज में आप ये स्विंग तो स्विंग अपनी आप सीख सकते हो, पेस नहीं आपकी आएगी सर्टेन एज के बाद, बट स्विंग यू कैन लर्न। सो गोइंग विद एनी यंगस्टर, अगर आपके पास एक वो पेस की विंडो है 19-20 साल, गो एंड बॉल एज फास्ट एज पॉसिबल। स्किल्स कैन बी टॉट लेटर, पेस कैन नॉट बी टॉट यू लेटर। आपकी आई थिंक मेरे ख्याल में 24 साल तक में भी बढ़े, और वो भी बढ़ेगी बिकॉज आपकी जब बॉलिंग लंबी करोगे, बॉलिंग मसल्स जब स्ट्रांग होंगे। अब फिजियो, अब आजकल एक बहाना, हमारे कल्चर में बहाने भी बड़े आते हैं ना, फिजियो ने कह दी 24 गेंदें कर दे। अबे फिजियो है, कोई अल्लाह मियां तो नहीं है ना। तुम अपनी बॉडी देखो, और फिर अगर तो 24 बॉलों से एक तो जिस्म खुलता है आपका। हम यही मैं वकार बात कर रहे थे कि 24 बॉलों से तो आपकी बॉडी गर्म होती है, फिर आके आपके 4 को जोर लगाते हो नेट में। अब आके कहते हैं हमने 6-16 गेंदें करनी है, कोई कहता है 17 गेंदें करनी। मैं कह यार मैच तो पूरा कर लो, 3 ओवर कर लो, 4 ओवर कर लो। But वो उस पे बात है। वकार, for you, what is the matchup that you're looking forward to? Look, अभी जो स्टैट्स थोड़ी देर पहले दिखाया था ना कि बांग्लादेश 3 मैच जीती हुई है रीसेंट पास में, तो आई थिंक उससे उनको इनकरेजमेंट ज़रूर मिलेगी, इससे इसमें कोई शक नहीं है। मैचअप की अगर बात की जाए तो मैं प्रोबेबली नौहिद राना का बोलूँगा, क्योंकि नौहिद राना अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बड़ी अच्छी, बड़ी तेज़ बॉलिंग की है। सो आई थिंक अगर उसका गेंद गिरना शुरू हो गया अर्ली ऑन, तो वो मैचअप विराट कोहली के साथ या रोहित शर्मा के साथ वो राना का मैचअप हो सकता है। Yep. राणा का मैचअप हो सकता है। या बिल्कुल बिल्कुल। कौन से वाला राणा है? मुझको राणा जी माफ करना, गलती बोला। That was, by the way, iconic song. Yeah, it is an iconic song. Absolutely. Interesting, Wasim, you know, we've got your favorite shot. The Hoover. Hoover दिखाइए। Hoover आपको दिखाते हैं, and then Wasim. हम तो पूरे 1.5 It's open to all of you guys can comment. आप सब इसके ऊपर इस pitch It को looks very dry, bone dry। अब नासिर हुसैन को क्या नजर आया कि शायद इसमें जो टर्न होना है बॉल में, पुजारा आपको लग नहीं रहा कितना साथ का देखे कितनी घास है, और ये देखिए कितनी ड्राई है। We were here for a month. Correct. जिस तरह से पिच दिख रही है, ड्राई तो बिल्कुल है, बट बाइंडिंग भी अच्छी खासी है, तो बैटिंग के लिए अच्छी होगी। हाँ, बैटिंग के लिए अच्छी होगी, नो डाउट, बट इसमें बॉल फंस के आएगा हल्का सा, बिकॉज हमने अब T20 में जब घास थी
तो बॉल मूव हो रहा था, जब इन्होंने घास हटा के ऐसा किया तो बॉल हल्का सा फास्ट बॉलर कभी फंस रहा था, बहुत ज्यादा ड्राई ना हो। ये पाजी ऐसा विकेट है, और हम लोग पिछले 1 महीने से यहीं पे हैं। ऐसी विकेट हमने पूरे टूर्नामेंट में डीपी वर्ल्ड ILT20 में देखा था। फास्ट बॉलर वो 3-4 ओवर के बाद ना, जब बॉल डालने भी आ रहा था तो सिर्फ उंगलियां फेर रहे थे। स्लोअर बॉल्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दोस कंडीशंस। ये ऐसी विकेट पे अगर भारत खेल रहा है तो मेरे ख्याल में वो लगभग आप 30 ओवर स्पिन के आप देख सकते हो, एंड दैट कुड बी द गेम चेंजिंग। Yeah, that could be the game changing. Win the toss and do what on this pitch? Batting. Simple as Bangladesh. that. For Bangladesh. Anyone, I think. No, I not think even for India. But I think, of course, can do be, but I have a feeling going with a mindset, keeping in mind वो 23 तारीख का मैच कि यार अगर फंस गए टॉस, हार गए, ऐसा करना है, so I think let's just try and make things difficult for ourselves. So I mean, India would be looking to maybe Ball Interesting, first? Waqar, You think they'll be looking to ball first? I think India Don't will you be with think the they want to put runs on the board and knowing Get the runs. But Paji, I have a feeling, understanding Gautam Gambhir's mindset Okay. and जो टीम का माहौल भी चल रहा है ना कि 3 स्पिनर आप खिला रहे हो, तो सूखा बॉल अगर हमने देखा ड्यू हुई नहीं, पर 1% थोड़ा भी बॉल गीला होता है, क्या होता है, यू लुक इनटू। मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि टीम कॉम्बिनेशन क्या है। अगर 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, जो तब तो आप बात पहले अभी चल रही है, रिवर्स के भी चांसेस हो सकते हैं जितनी तो ड्राई मेरे ख्याल से पहले बल्लेबाजी करेंगे, और जब अंडर लाइट्स गेंदबाजी होगी तो थोड़ा सा जो भी हल्की सी मूवमेंट मिलेगी वो तेज गेंदबाजों को सेकंड इनिंग में मिल सकती है। तो अगर मेरे ख्याल से अगर 3 फास्ट बॉलर्स खेलते हैं टीम में तो पहले बल्लेबाजी करें। और वसीम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नासिर ने कहा कि ग्राउंडमैन से उनकी बात हुई है, उसने कहा कि वी हैव नॉट सीन एनी ड्यू हियर, देयर इज नो ड्यू फैक्टर, Because it gets little windy in the evening. I think dew windy जब थोड़ा हवा चलती है तो वो शायद नहीं आता। so- इतनी heavy dew जब ILT20 में हम थे पूरा 1 महीना, तो उसमें dew नहीं hardly पड़ी, any बहुत dew. कम पड़ी है। दिखी तो नहीं, I mean कोई ऐसा मैच नहीं था जहाँ पे वो बहुत ज्यादा गीला हो, थोड़ा ग्रीसी हो जाता है some time when that goes into well into the night, then only. एक चीज आज हम करना भूल गए बॉयज, हडल नहीं की हमने आज। ओहो, तो एक काम करते हैं ना, ये जरा टीम इंडिया हडल में आप उनको देखिए, हम लेते हैं ब्रेक, हम ब्रेक में हडल करते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं। But there is Team India in a huddle, and Wasim, you and I will do a huddle in the break with all the boys. All right, man. All right, okay. We'll see you in the DP World dressing room after the break. Welcome back to the DP World dressing room. I'm Fakhri Alam. You're watching 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20. Oh, not T20, Champions Trophy. My apologies. I'm still Payan, stuck over वापस there. आ जाओ। आगे Payan. By the way, very interesting thing. We told you that Team India was in a huddle, और वो हमने कल फैसला किया था कि हम भी हडल करेंगे। तो हमने हडल किया, ये हडल आपको दिखाते हैं। This was the huddle that went down in the break while you guys were away. We were huddling. That's the huddle. हम चले हो चुके हैं। I just want to ask you guys, why were we going around in circles? I don't know. It's less of a huddle and more like merry-go-round. Yeah. है ना? I don't know what were we thinking, Wasim? सारा पूंजी का कसूर है। सारा पूजी No, because Putin is going to celebrate his daughter's 7th birthday, तो फिर वो रिंगा roses गिलवा रहा था। कुछ इस टाइप का था। Yeah. But there was a huddle, no Yeah. question about that. Yep. ब्रेक पे जाने से पहले हमने पिच रिपोर्ट देखी थी और पिच रिपोर्ट के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, and then of course I asked what do we do, who win the toss and do what, and we're getting very close to the toss. We're going to get both the captains out momentarily. Looking at the टीम्स बोथ साइड्स, पुजारा आपने बात की कि अब ये देखना ये है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, फास्ट बॉलर्स का क्या रोल होगा, किस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेकर चलते हैं। बट again, somehow it has been a conversation throughout in social media, everybody saying दुबई की पिच स्पिन होगी, टर्न होगी, स्पिनर्स का रोल होगा, and ILT20 में स्पिनर्स का एक बहुत बड़ा जो था लास्ट उस पे था। Are we going to actually see that same continuation जो ILT20 से होती हुई आ रही है अभी तक? मुझे लग रहा है कि इट विल बी अ गुड बैटिंग पिच, तो वहाँ पर इसीलिए शायद 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं दोनों टीम। अगर बॉल स्किड करती है, अगर होल्ड नहीं करती है, तो इट विल बी अ हाई स्कोरिंग गेम। और वहाँ पर अगर तेज़ गेंदबाज है, और एक साइड पिच की जो है वहाँ पर बाउंड्री जो है 57 मीटर्स की और 60 मीटर्स की है, तो वो बहुत ही छोटी साइड है और दूसरी साइड बहुत ही लंबी है। तो वहाँ पर एक साइड से स्पिनर की गेंदबाजी बहुत कम देखने मिलेगी, दूसरे एंड से ज़्यादा देखने मिलेगी। तो ये पिच पे अभी जो जिस तरह से लग रहा है उस पे दोनों टीम टॉस जीत के बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। मुझे ये समझ नहीं आती है गेम, जैसे कल के मैच में भी, पाकिस्तान के मैच में न्यूजीलैंड से, एक साइड की बाउंड्री 62 यार्ड्स की थी, एक साइड की 64 की है। मीटर्स एक 70 मीटर्स का लॉ रख दो भाई। वो कोई जो नॉन क्रिकेटर्स, आईसीसी तो नॉन क्रिकेटर्स नहीं है, बट जनरली लीग्स में वो ये छोटी बाउंड्री छोटी कर दो, चिक्के पहन गए।
ये माइंड ऐसे it doesn't work like this. It's boring. कुछ ऐसे ग्राउंड है जहाँ ये मसला है कि वहाँ पे बड़ी नहीं हो सकती. Sure. स्क्वायर बड़ा है और ग्राउंड छोटा है, उसकी वजह से फिर एक साइड छोटी हो जाती है. लेकिन जहाँ पे ग्राउंड बड़ा है, स्पेशली कराची हो गया, लाहौर हो गया, आई एम नॉट श्योर इधर भी एक्चुअली हो सकता है कि वो साइड्स बड़ी हैं. So अगर आप किसी भी पिच पे खिलाएं, आप एक साइड थोड़ी पीछे ले जाए, थोड़ी आगे ले आए, तो लेवल किया जा सकता है. I agree with you. 70 meters should be a standard. It's boring to watch cricket, especially in T20. Okay, once in a while to chasing 270 पे 270 हो जाए, मजा आता है. Every day 250 पे 250 हो रहा है, I don't enjoy it. Bowlers बेचारे स्पिनर्स ना आज आपको दिल से दुआएं दे रहे होंगे कि 70 मीटर की बाउंड्री कर दो. नहीं 70 यार, जो भी है एक लॉ बना दो ना. Minimum. Regulation आ जाए ना कि भाई if you don't have a stadium that can have a boundary like this, it cannot qualify to be an international venue. एक PSL में इन्होंने दूसरा का तीसरा साल था, पता नहीं किसका ख्याल था, PSL का कौन 3 मिनट 6 फुट की बाउंड्री रख दी. Well, there you have it. The news out of Dubai is that Bangladesh have won the toss and decided to, as per your dear friend Ravi Shastri, bat. मुझे डर है रवि का मसल ना पुल हो जाए. Yeah, that is. But interestingly, आपने बात सुनी पुजारा, रोहित they was saying कि we wanted to actually bowl first, so दोनों कप्तानों की ख्वाहिश पूरी हो गई. और उन्होंने रीज़न भी यही बताया कि अंडर लाइट्स बैटिंग करना, बल्लेबाजी करना आसान होता है, बॉल थोड़ी ज़्यादा स्किड करती है और बांग्लादेश के स्पिनर्स ज़्यादा डेंजरस है. तो उसी की वजह से मेरे ख्याल से उन्होंने पहले गेंदबाजी मतलब वो चाहते होंगे. बट या इट विल बी अ गुड गेम, क्योंकि अभी बांग्लादेश के जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर प्रेशर कम रहेगा. जो उनकी जो प्लान थी कि पहले बल्लेबाजी करे और डिसेंट टोटल अगर बना सकते हैं तो देयर कुड बी अ प्रेशर. अगर 275-300 के आसपास स्कोर पहुंचता है तो इंडियन बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा प्रेशर बन सकता है. बट मेरे ख्याल से ये एक टेस्टिंग टाइम भी होगा गेंदबाजों के लिए कि पहले गेंदबाजी कर रहे हैं और कितनी अच्छी शुरू में गेंदबाजी करते हैं. ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा. प्लेइंग 11s are here with us because हमने देखा है चेंजेस हुई हैं, some surprises here for both sides. So that's team Bangladesh. वकार. No, I mean expected था यही बॉलिंग बैटिंग अटैक और हार्दिक रॉय और फिर तंजीम टस्किन एंड मुशफिकुर. सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी बैलेंस साइड. मुझे जो अफसोस ये हुआ है कि राणा जी नहीं खेल रहे. मैंने इतना केस बनाया था उनका कि वो मैचअप होगा. अब ये वो बनता है मुझको राणा जी माफ करना. इंडिया की Absolutely. India. Team looks really strong. I mean, look at these top three best players in the world. Virat Kohli, the great Rohit, the greatest, and Iyer is there. Of course, he's in good nick. Akshar is an all-rounder. Rahul, keeper batsman. Then of course bowling all-rounder. Harshit, Shami, and Kuldeep. So it looks a very good and a balanced side. Very good side, but एक ही शायद मुझे लग रहा है कि अर्शदीप जो फैक्टर हो सकते थे. इट्स अ सरप्राइज फॉर मी क्योंकि हर्षित को खिलाया उनकी जगह पे. दैट्स अ टफ कॉल ऑन हिम. शायद थोड़ा सा उसको मैच प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं शामी को ताकि मैच फिट. नहीं, शामी तो खेलने वाले ही थे, बट हर्षित राणा खेले अर्शदीप की जगह पे. हाँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड शो था. हाँ, इसके पीछे कोई ना कोई इनका वो होगा माइंडसेट ऐसे मंतक. वो पेस को लेकर. बट द गुड थिंग इज जिस तरीके से विकेट और हम लोग बात भी कर रहे थे, भारतीय टीम जो टीम का चैन भी है, द नंबर ऑफ स्पिनर्स, आपको 30 और स्पिन के नजर आएंगे. और अगर शाम के समय एक और पेसर आपको चाहिए होता है या दोपहर में चाहिए होता है, देन ऑफ कोर्स हार्दिक का टीम होने में वो बैलेंस बहुत बनता है. Yeah, it changes the complexion of the side. And with that, we're going to take a break here in the DP World dressing room. We'll see you on the other side. Stay with us. Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Alam. You're watching 10 Sports, our exclusive coverage of the ICC Champions Trophy happening in Pakistan and today's game in Dubai. It is India versus Bangladesh. Bangladesh have won the toss and have elected to bat, and we're going to see a lot of action. But before we get going towards the action, I've got the 4 panelists, and it's important now for the predictions to happen. अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूं predictions के हवाले से. ये बड़ी important बात है. वो जो DP World का ट्रक आपको हमारे सेट पे नजर आता है ना, इस DP World के ट्रक का ये जो कंटेनर है ना पीछे, इसके अंदर विनर के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है, which will be unveiled on the last day after the final in the post production. So whoever नहीं नाग ऐसी सेट पे पाए हैं, ठीक है ना. So there is a special prize in there
for one of you lucky guys who gets the most predictions right. वो प्राइस मैं तुम्हें बताता हूँ अभी सही. नहीं वो हैम्पर नहीं है जो आपको हैम्पर होएगा तो बिस्कुट होंगे, ऑलिव होंगे, खजूरें होंगी, नहीं किटकैट होएगी, एक कद्दी टोपी होएगी, एक टी-शर्ट होएगी. We're not going to do it like that. It's Yeah, DP please World. don't. I can promise you the DP World management will take care of it. It's a special surprise inside. Okay. I know it. I can't tell you guys. And you're not supposed to touch that truck and find I out will what's now. inside. No, you will not. You are forbidden बता to दिया touch तो फिर। that. जैसे So, भाई आपको so predictions are very आपको important. उसके अंदर जो तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा. अच्छा सुने, ट्रक भी साथ we've जाएगा. got 30 seconds to go. Nikhil, am for you. इंडिया ऑफ कोर्स India. Waqar, for you. इंडिया. India. Wasim, for you. इंडिया इंडिया यार. India. India, of course. And India. it's all heavily towards India. Pretty one-sided affair, it seems like, because now everybody wants to win what's inside that dabba. Yeah, right. That's the DP World पहले क्यों dabba. नहीं दसा? कल क्यों नहीं दसा? कल बताना था ना यार. नहीं, कल नहीं बता रहा था ना. All right, guys. Thank you very much. Delighted you. to have spent this time with you, and I will see you on the other side of the game because it's time to take our viewers over to the Dubai Stadium. After this break, you'll see live action from the Ring of Fire. We'll see you on the other side of the game.